السلام ناظرین شام 4:05 سپد تو بہت ساحل امین قشر خبرنامہ ہیت تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل سپورٹس گراؤنڈ ستواری جمس مز آز LG منوج سنان POJ کے مہاجرین باپت سپیشل شکایتی کیمپس دس تلمت یتھ دوران انتظامی کن دویمین افسرن علاوہ عوامی نمائندوں تو مہاجرو کیمپس مز شرکت کر ات موقع پہ LG منوج سنان مہاجرین مخاطب سپدت ون تم بھارتک حصہ تو یم سہولیت جموں کشیر ہندین دویمین لوکن میسر تھونہ آمت تمن سہولیتن ہند فائدہ وات ون PAG مہاجرین تت تمو وونمت یہ پتمین 2 ورین دوران 30,000 کھت زیادہ سرکاری محکمن مز خالی اسامہ پور کرنا آئی تاکہ ین والن دون ریتن مز مزید 20,000 خالی اسامہ پور کرنے یم ست نوجوانن روزگار فراہم سپدہ آج جو شروعات ہوئی ہے ایک کوشش ہے پرشاسن آپ تک سوئم پہنچے اور جو سرکاری یوجنائیں ان کا تو 100% لابھ آپ کو ملے گی جیسا کے سدھا نے بتایا کہ کیول سرکاری یوجناؤں کا لابھ نہیں بلکہ آپ کے بیچ پرشاسن اس لیے آیا کہ جن کو بھی روزگار کرنا ہے کوئی اس کی سیما نہیں جتنی سنکھیا میں لوگ خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی بہن سو روزگار کرنا چاہتے ہیں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی کیونکہ آرتھک سہایتا سے سمان پوروک لمبے سمے تک سماج نہیں جیتا ہے سوئم کے پرسارتھ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتہاس بنایا جاتا ہے آپ کے پوروجوں کا جو اتہاس ہے اتہاس پر غور کریے اس سے سبق لیتے ہوئے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے ماننی پردھان منتری جی کا آپ نے آبھار ویکت کیا واستو میں پردھان منتری جی کے ایتہاسک فیصلے کے کارن 5 اگست 2019 کے بعد اسنکھ ایسے لوگ جو لمبے سمے سے اپنے مولک ادھیکاروں سے ونچت تھے کیول مولک ادھیکار نہیں بلکہ ساماجک ادھیکاروں سے ونچت تھے آرتھک ادھیکاروں سے ونچت تھے اس ایتہاسک نرنے سے ڈھیر سارے لوگوں کا جیون بدلا ہے لیکن وقت کا پہیا جس رفتار سے گھوم رہا آپ بھارت ماتا کی سنتان ہیں اور ہم آج دنیا کی 5ویں بڑی ارتھ ویوستھا بن گئے ہیں اس دیش کو پیچھے چھوڑ کر کے جس دیش کے ہم غلام ہوا کرتے تھے اب بھارت لکष्य لے کر چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں دنیا کی تیسری بڑی ارتھ ویوستھا بننی ہے اور تیسری بڑی ارتھ ویوستھا میں آپ کا یوگدان بھی کسی سے کم نہ ہو میں سمجھتا ہوں یہ سنکلپ آج لینے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ جن کالونیز میں رہتے ہیں ان کا ریگولرائزیشن نہیں ہوا ہے اسے بھی ریگولر کر لیا جائے گا یہ کام بھی آنے والے دنوں میں ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات میں دہرانا چاہتا ہوں کہ POJ کے یہ بھارت کا ابھن انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس سے ہم سے الگ نہیں کر سکتی مجھے کوئی سندے نہیں کہ ایک دن ہماری مٹی کے سبھی اویبھاجیہ بھارت کا مضبوط حصہ بنیں گے اور اکھنڈ بھارت کے سنکلپ کو ساکار کرنے کا سپنا جو ہمارے پوروجوں نے دیکھا تھا وہ نشچت روپ سے پورا ہوگا میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کیمپ کا جو ویژن ہے وستھاپن سے استھاپن اس کیمپ کا ویژن ہے پرشاسن آپ کی اپیکشاؤں پر کھرا اترے آپ اپنے کو شرنارتھی کے روپ میں دیکھنا بند کریے آپ ایک سوابھیمانی ناگرک اس دیش کے ہیں اس درشٹی سے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اکھنڈ بھارت کے ناگرک سوابھیمانی ہی رہیں آپ سبھی پریوار بھارت ماتا کی سنتان ہیں یوا ہوں ہماری بہنیں ہوں سبھی مل کر جموں کشمیر اور بھارت کے بھوشیہ کو سنوارنے میں اپنا یوگدان دیجیے اس مہایج میں آپ کی آہوتی کا آواہن کرنے ہم آئے ہیں اور ہمارا پرشاسن یہ سنشچت کرے گا کہ یوجناؤں اور آپ کی امیدوں کے بیچ کا فیصلہ جلد سے جلد سماپت ہو جائے اس نئے جموں کشمیر میں آپ کو بھی کسی سے کم لابھ نہ ملے یہ ہم ضرور سنشچت کریں گے ایک بات اب ایسے لوگ چینت ہو رہے ہیں جن کے پاس یوگیتا ہے جن کے پاس پرتبھا ہے
पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। पारदर्शी तरीके से दी गई है, किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, ये व्यवस्था खत्म हो गई। जिन मामलों में शिकायत आई है उसकी जांच सीबीआई से कराई गई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसने भी जो भी उसमें दोषी पाएगा, भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत कठोरतम दंड उसे ऐसा मिलेगा कि भविष्य में कोई साहस न करे इस तरह की गलती करने का। 20,000 पदों की भर्ती आने वाले महीनों में 2 महीने में हम विज्ञापन निकाल कर करना चाहते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई, अंतिम व्यक्ति का साक्षात्कार समाप्त हुआ और उसके 3 घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। शायद ये जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में ये पहली घटना है। 20-20 साल 21 साल से लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे अनेक विभागों में, और जानबूझकर रोका गया कि योग्यता प्रतिभा का कैसे हनन किया जाए, अपने पसंदीदा लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2001-2 से 2000 से रुके हुए सारे प्रमोशन कर्मचारियों के कर दिए गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह संदिस बयान हिमायत करान वोन सियासतदान पज वतिश दिन वाल बयान दिन निश गुरेज कर तमो अमशीपुरा वाकस हवाले कत करान वोनमुत ज प्रेत मामलस हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात सपदुन। मैं वार्निंग नहीं मानता हूं, मैं सलाह मानता हूं, और मैं भी इसके साथ हूं कि हमें जज्बात नौजवानों के ये नहीं करने चाहिए। वी शुड नॉट रेज द tempers within the youth of the state because they have already suffered. मैं ये मानता हूँ कि हम बात मेजर्ड करें जिससे हमारे बच्चे फिर एक बार वो रास्ता ना इख्तियार करें जिस रास्ते पे वो 30 साल पहले निकल चुके। ये तो वेलकम स्टेप है। सुनिए ये तो वेलकम स्टेप है, और मुझे इसलिए ज़्यादा इस पे तसल्ली है कि शायद हम लोग पहले थे जिन्होंने ये उठाया, अपनी पार्टी ने उठाया और एश्योरेंस वहाँ से आई। फिर हमने देखा गवर्नर साहब ने उन लोगों को कुछ ये जाके घरों में जाके इमदाद भी की। इट हैज़ कम टू अ लॉजिकल एंड। बाकी भी एनकाउंटर्स जहाँ हुए हैं, यहाँ मैं नहीं कहूँगा, यहाँ भी कुपवारा में, कुनन पोशपोरा में हुआ, इससे पहले भी हुआ। देयर आर मेनी केसेस, बल्कि नॉट ओनली दीज केसेस जो 2018 से हो, इससे पहले के भी जो केसेस हैं, मैं तो ये कहूँगा इससे पहले के केसेस में भी सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल गारमेंट के दौरों में हुए हैं। गवर्नर रूल में तो 2018 से, इससे पहले पॉलिटिकल गारमेंट्स में भी हुए हैं काफ़ी सारे, वो पेंडिंग है अभी तक। उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वेदर वो पीडीपी के दौर में हुए, वेदर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुए, जिसके दौर में भी हुए। एवरीबॉडी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। क्यों? खून नाहक है जिसने भी बहाया, चाहे वो गवर्नर की इंतजामिया थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड इंतजामिया थी, चाहे पीडीपी लेड इंतजामिया थी। ये नहीं है कि साहब वो चाकू शायद अपना था और ये चाकू किसी और का, जिसका बच्चा मरा वो तो खून नाहक से मरा। जब हो जाएगा तो अब क्या, इतनी भी क्या। जनूबी कश्मीर हंदिस पुलवामिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ मीटिंग सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मसूदियस अलावा दोयमो पार्टी लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी सरगर्मियन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कतन दल दिन आव, तत जिम्मेदारन वन आमुत तिम गसन जमीनी सतरस पे पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत कोशिश करें। यल जन हसनैन मसूदियन अत मौके पे वोन ये मरकजी सरकार तरफ खसूसी दर्ज खत्म करने विज जम्मू कश्मीर हंदन लूकन से कया वाद करना आये, ताहम तिम वाद थोच साबित सपदमित, तिकाज जम्मू कश्मीर हिंस सूरत हाल दो खुद दो अबतर सपदान यम सत आम लोग मुश्किलन मज हन आमद। देखिए, जहाँ तक G20 की सरबराही का ताल्लुक है, उसके साथ जिम्मेदारियाँ आती हैं। जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग जमहूरियत से महरूम हैं। पिछले 4 साल से कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, अफसरशाही है, जबकि मुल्क के आइन के मुताबिक लोकशाही होनी चाहिए, अवाम की सरदारी है और कानून की अमलदारी है, और वो सब चीज़ें यहाँ हैं नहीं। तो जो जैसे मैंने गुजारिश की कि इसके साथ जो ये आपको अगर कोई मनसब मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ कश्मीर के हवाले से नहीं निभाई जा रही। अब देखिए, हर रोज़ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे डिसएम्पावर हो, बेख्तियारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब अभी टैक्स का मामला लीजिए, अगर ये एक मुसल्लमा कानून है, एक बेस लाइन ये है प्रिंसिपल
कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये टैक्स लगाने का सिर्फ इख्तियार होता है एक सॉवरेन को, एक सॉवरेन काम, एक सॉवरेन इख्तियार है। अगर पिछले 70 साल में टैक्स नहीं लगाया गया तो उसकी कुछ वजूहत होंगी, और क्या वो वजूहत अभी भी मौजूद हैं, उस पर कहाँ बहस होगी? उस पर एक चुनी हुई असेंबली में बहस होगी कि अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम विश्व गुरु हैं, हमें दुनिया की लीडरशिप, 20 ममालिक की लीडरशिप का हमें इम्तियाज़ हासिल है, तो फिर ऐसे इक़दाम कीजिए ना जो उसके साथ मुनासिबत रखते हों। जैसे अफसा को अब उठा दीजिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कलम कीजिए, उसको उठा दीजिए, जो कैदी हैं उनको रहा कीजिए, जो सियासी कैदी हैं, और कहाँ कहाँ सियासी कैदी हैं, मजहबी रहनुमा कैद में हैं, उनको रहा कीजिए। और डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट जो है वो आप उठाइए। आप जो भी ये G20 के हवाले से जो भी यहाँ पर तकरीबात करेंगे या कहीं और करेंगे, तो कैसे उसका आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी, इनका जो हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ हम पूरी कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर हंदिस अनंतनागस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत, यथ मज पार्टी सीनियर लीडर अशोक कोलस अलाव दोयमो लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत पार्टी लीडरन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले संजीद कदम तुलन, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। ये जन अशोक कोलन अत मौके पे अमशीपुर वाक़स हवाले कत करान वोन जे गलती युस ते कर तस खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा हमने इलेक्शन की दृष्टि से ही इस मीटिंग को रखा था, और आगे भी हम अगले मीटिंग्स जो है वो इलेक्शन दृष्टि से भी रख रहे हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कभी भी चुनाव होगा उस समय हम तैयार होने चाहिए, ऐसी हमारी मानसिकता है, ऐसा हमारा सोच है। इसलिए हम लगातार हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और बूथ तक जाने का, बूथ सशक्तिकरण का, बूथ स्ट्रॉन्ग करने का हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दे को हम कर रहे हैं। हमारे लिए इलेक्शन जब भी होगा हम इलेक्शन करने के लिए तैयार है। ये बात ठीक है कि यहाँ के सरकार ने पूरी तैयारी की है, और अब निर्णय जो है, डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। कभी भी वो निर्णय ले सकता है, और जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। चुनाव होंगे ऐसे इसी साल होगा। जो पीछे हमने बताया कि भाई दिसंबर नवंबर लास्ट में हमारे जो वोटर लिस्ट थी उसकी सारी नवंबर के लास्ट में उसको शाया किया उन्होंने, और उसके बाद थोड़ा मौसम को ध्यान में रखते हुए, और आगे लगता है कि जो ही मौसम ठीक होने वाला हो रहा है तो कभी भी चुनाव जो है उसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ऐसा है कि जहां भी कोई गलती करेगा, वो जो वहां मेजर था उसने गलती की है, तो भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार कोई भी गलती करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। तो आपने देखा कि उसको पहले उसका सारी चीजें हो गई, बाद में उसमें कोर्ट मार्शल हो गया, और कोर्ट मार्शल ने उसको सजा दी है। और किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी ने कोई, वो चाहे आर्मी का आदमी हो, जो चाहे पुलिस का आदमी है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। पहले भी हो सकते हैं, यात्रा के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव होंगे। किनगाम अचबल अनंतनागस मज आज महकमे सोशल फॉरेस्ट्री तरफ शजरकारी मुहिम हवाले तकरीबी हूं सांस करना आमुत, यथ मज महकमिक रीजनल डायरेक्टर महराजुद्दीन मलिकस अलाव दोयमो जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे कया कुल लागना आई, तत 7,000 फ्रेश कुल लूकन मज बगरन आमुत, ये जन महराजुद्दीन मलिकन वोन ये महकम तरफ ग्रीन जम्मू कश्मीर बनावनस हवाले शजरकारी मुहिम अमल मज अन्न, तत फ्रेश कुल लूकन मज बगरन मकसद जरूरत विज करन लूक तमीर बापत यह लकड़ इस्तेमाल, युत जन जंगलन पे कम दबाव रोज तो अमि कौमी सरमाइच हिफाजत यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे।
मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के वसात से बोलने का मौका दिया। जो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री का जो वजूद अमल में है उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि जो कुदरती जंगलात हमारे पास है उनसे जो निकलने वाली इमारती लकड़ी है उस पर कम से कम प्रेशर रखा जाए। उस चीज को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के लिए महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जो भी स्कीम है, चाहे ये कैंपा है, कैपेक्स है, ग्रीन इंडिया मिशन है, उसमें हमारा एक कंपोनेंट होता है फार्म फॉरेस्ट्री जी। इसका मकसद यही होता है कि जो लोगों के पास जो खाली पड़ी जमीन है, पंचायती जमीन है या लोगों ने जो बागात लगाए उसके इर्द गिर्द जो भी जमीन उनके पास है उस पर वो पौधे लगाए जिनसे जो इमारती लकड़ी का काम भी देंगे और जिनसे बालन भी निकलेगा, जिनसे और भी जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में उनके लकड़ी पे जो इंसार की चीजें वो उनसे हासिल हो जाएगी। इसी की कड़ी के तहत आज का जो ये प्रोग्राम है हमने यहाँ निगाम ये हमारा रेंज कर्मा के अंडर में आता है। आज हमने यहाँ 7,000 हम मेल पॉपुलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तकरीबन 52 बेनिफिशरीज में, जिनका हमने फेयर सिलेक्शन के थ्रू किया, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के साथ उनको चुना है। और इसी का यही सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो हमारा पॉपुलर है ये सर्टिफाइड मेल है, उसमें कोई शक शुबा की बात नहीं कि ये हम एश्योर करते हैं कि ये मेल है, क्योंकि उससे हमें रोई पे भी काबू हो सकता है। इसका मेल डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है। दूसरा है कि ये जो हमारी इमारती लकड़ी का एक मुतबादिल कश्मीर कॉन्फ्रेंस के थे, क्योंकि जो भी आजकल हमारी इमारती लकड़ी जो ट्रसेस में लगती है, चाहे एप्पल का बख्शिश होना महकमे बिजली तरफ ये कईयान इलाकन में स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले मुहिम शुरू करने आम कपवारिस मज महकम तरफ स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले कदम तुलने आमुत यथ खिलाफ आज मुकामी लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आव। एहतजाजी मुजाहिर में शामिल लूक ये महकमे बिजली तो इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान LG इंतजामिया मंग करना आमद ज अत पे गई नजर सानी कर युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। मजबूर ड्रग्स करने खतर मीटर लगे 10 दिन रपी सास अनो अगर लड़के पढ़े लिखे तम ग ना मुलाजिम लागू आर्डर कोड़ा तम मोदी साहब तन पे आर्डर कोड़ना लूकन दितन तुमलो फल तुम लगन तथ सत हपन लुक त्रट यूत जुलम छ कर स्मार्ट मीटर गसन वतन बाकी गो फीस या कस त बारा ये फीस रेत पत रेत थावन त बारा सोरे जुलम प्रत साइड आब फीस तमाम हेको सुत बर पन गरीब हेक कोता कर गरीब स्कूल फीस भरा गरीब आब फीस भरा ये वो द्रा ब्या कानून कि टैक्स भरन पोर तुम लोनन पे मोदी वजह कश्मीर मज 3-4 पोर लोन ये मार्केट सोरे खत्म गोमुत गरीब तब क्या कर सह बीमारस वात्या गर सह पन्निस बच्चस वात्या गर सह स्कूल फीस भरा सह क्या टैक्स भरा सह स्मार्ट मीटर फीस भरा बंद यम 3 वर 700 रपी भरा 1.5 लाख 2 लाख ये तम सह पे अदा कर तुम कत कर बाकी पे सोन मतलब ये गैस खोतमुत तथ गस वसन हेको टैक्स भरत कि बे स्मार्ट मीटर हेको इस्तेमाल कर घर में मजूर दिल्ली मज मुफ्त पावर चलान यह बाकी कश्मीर पावर ये नबरी मुफ्त चल स्मार्ट मीटर लग करो अनो तो मीटर वालों पत्थर सुनो जलित अनो जहर दिमो पन अयालन नेरो एत सुनो मरित पे जुलम कर प्रत साइड जुलम कर गवर्नमेंटस अपील कि डिप्रेशन मज लूक गमत आज हार्ट अटैक गसान न्यू जनरेशन सह दिवान दरियावस पान वजह डिप्रेशन गरीब बाप क्या कर सह फीस भर अमे मुझे लकट जनरेशन सह डिप्रेशन गैस यह जुलम जिन बना दिमाग शाना क्या करो यपर सुंबल बंडपुरिस मज आज स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ वन आमुत ये लूक गो आवलिनस मज हेन आमुत तत स्मार्ट मीटर नस्ब करने सत लूकन हिंदन मुश्किलन मज इजाफा सपदमुत यम किन लूक सड़कन पे यनस मजबूर सपद।
لاگو بارو بجلی فیس کتہ انو سونے پاور اچھا مول اس کیا کرو اس کیا کوئی ظلم کیا کرو کشمیر ہاں ساری ونکس ون باغس تہ لاگنے ون پولیس لاگنے ون تمام لاگنے تو سون یہ باغ کیا ایڈس پہ لوگو گوڑ اسی سمبل انصافی اس ونو اس کیا کرن اس کرو تی موضوع ہش مے گژھِ نہ تٔمِس آب سیر آسُن بہٕ کوٚت گژھٕ یہِ چھُ خۄد غرضی تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دِیِو اجازت خدایس حوالہٕ